first, before starting implementation, I would like to go for again 5 minutes recap what I said last time. Always keep in mind, if you want to go for interview of WCF, there is a plan to go for WCF interview suppose next week. So you are going on Saturday for interview in asset technologies. Let's get it. You are going. आप भी जाओगे सैटरडे को पीछे बढ़ आप एसेट टेक्नोलॉजी चिंता मत करो ठीक है क्वेश्चन पैटर्न विल डिस्कस ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग तो वो वाला को आप भी जाओगे इसको जाना है सर में टू 10 पे और टू 10 नहीं है तो वो ऑन ट्यूसडे को आप सुबह आओगे 8 बजे मुझसे मिलने के लिए टॉपिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स नो डाउट इवन द 0.1%. If you are gonna plan for going WCF interviews, बेटे 4 टॉपिक अभी दिस पे होनी चाहिए 4 टॉपिक. Is first called the implementation of exception handling. The second topic called transaction in WCF, and third called transport layer securities, and fourth called message layer securities, and fifth is most important multiple hosting. ये हमें कराया multiple hosting नहीं कराया. 5 टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट. When you go for 10 plus, you will go for 5 plus in WCF. Multiple hosting as a first topic आपका exception handling है. सेकेंड ट्रांजेक्शन्स डेटाबेस के लेवल पे और डेटा को सिक्योर करने में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और डेटाबेस डेटा को सिक्योर करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या मैसेज लेयर सिक्योरिटी एंड मल्टीपल होस्टिंग. उसके बाद तुम जो पढ़ना पड़ो वो रेस्ट. 12 आज पार्टी होनी चाहिए. अब सुन रहे हो पढ़ाई काम आई निकालिए इससे निकाल दिया इसको. करें स्टार्ट अंकल तो बेटे किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इंटरव्यू. They will give you maximum 5 minutes to 10 minutes for writing the programs on a paper. Maximum 5 to 10 minutes. I say, I will use first. How where to use exception handling, you know well. If any program is depending on what other program, that program can give me drastic result or can give me favor result. What are those scenarios? I am going to get data from other applications. When the what exception handling, you know, when you write some program and when the logic of the program beyond of your approach, it is beyond to your control. But a man of work in ASP.NET, we want to go implementing a WCF for this, we cannot do because then we had a class called exception class. So exception class cannot use in WCF because Akansha makes a WCF and Pooja, she accesses the WCF. It means there are 2 different application domains. Website in one domain, WCF in second domain. In between there is a protocol and envelope on the what? Protocol. So if you wanna go for getting exceptions remotely, you have to apply the fault exception class. हेलो हाँ बोलो. हाँ क्लास में आए बेटे क्लास में नहीं आई. अच्छा एक काम कर बेटे एक काम कर कॉल पे 12 बजे का ठीक है आप बात करना. हाँ ठीक है बेटा. So what is again fault exception class? Fault exception is basically a class we can catch any exception remotely. और एक्सेप्शन किसके द्वारा आएगा बोलो? इनवैलिड के द्वारा. आपके अगर बेटे बाइक पंक्चर हो जाए आप मेरे को प्लीज फोन करो आप क्लास में आ रहे हो. आई शुड नॉट वेट फॉर यू. आपको तो कैसे कॉल करोगे? You have to have a mobile or any other device. तो एक अगर एप्लीकेशन अगर रिमोटली एक्सेप्शन थ्रो करता है उसको कैच करने की वर्ड में अप्लाई फॉल्ट एक्सेप्शन क्लास. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन क्लास
एंड फॉल्ट एक्सेप्शन क्लास। अब बेटे जैसे बेटे हॉट शेल के ऊपर वाला क्वेश्चन उठ गया है, उसको बदलाओ तो व्हाट इज एक्सेप्शन क्लास। सो देयर इज एप्लीकेशन, देयर इज एप्लीकेशन रस इज रस अंडर वन ऐप डोमेन। तो बेटे जहाँ दिक्कत है मुझसे पूछो। देयर इज एप्लीकेशन बेटा रस इन वन ऐप डोमेन। सो व्हाट इज ऐप डोमेन? Within the app domain, we can have multiple applications. Like beta, this is one घर, there is a family called पापा, मम्मी and sister. पापा को चोट लग गया, डोंट माइंड, पापा को चोट लग गया, बेटा के चोट लग गई। तो बाप अगर बोल रहा है बेटे को, दोनों का है, बोलो एक ही डोमेन में। ये बेटा हमसे पूछेंगे ड्रॉबैक ऑफ एक्सेप्शन क्लॉज। The exception clause drawback is if I have any problem, I cannot share with you because you are sitting in remote place. It means the man who is making a web page, uncle, the man who is making a web page for ASPX, the time pass for CS, and the man working data access layer, or even though BL layer, or even though session layer, who are really whatever layer, if any layer does nonsense activities, nonsense, बदतमीजी, I can handle your nonsense when the caller and called in single app domain. एक एप्लीकेशन बनी है और बननी है या बनानी है, उसका लॉजिक बेटे हम किसी क्लास में डालते हैं। आप उसको फैसाड लेयर बोलो, बकवास लेयर, जो भी लेयर बोलो, उससे मतलब नहीं। उसका एक्सेप्शन कैच करने का जो थ्रू या कैच होगा, जो ट्राई थ्रू कैच होंगे, सेम डोमेन कर लो। इसका मतलब एक्सेप्शन क्लास डज नॉट सपोर्ट एसक्यूएल आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इट मीन्स एक्सेप्शन क्लास सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, not a service oriented architecture, and WCF is a what? Service oriented based architecture. And beta, what is service oriented? N-tier based. What? N-tier based. अब आ जाओ सेकेंड फेज। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया। अब आ जाओ, अब बेटा उसको फिगर दिखो। नाउ देयर इज ए ASPX plus CS and this is what? WC. WCF is on the IIS and this one again running on the what? अब बेटे दिक्कत थोड़ी ये है, भाषा का हेड फेयर है, याद रखना। IS 7.0 से लेकर आने वाले वर्जन में एप्लीकेशन डोमेन नाम का वर्ड नहीं होता, बल्कि एप्लीकेशन पूल होता है। एंड डजंट मैटर, हार्डली मैटर, नो विल मैटर। एप्लीकेशन पूल और डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं। आपको कितना भी छेड़ेगा, आप उससे पढ़ रहे। सो एज सच नो डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड पूल। एप्लीकेशन डोमेन वर्ड इज नोन एज इन IS 7.05 एप्लीकेशन पूल। And pool, what is pool? Collection of programs, collection of applications. तो आपकी वेब पेज चल रही है अंकल, साइट चल रही है IIS के ऊपर, और आपकी WC भी कहाँ चल रही है बोलो? IIS के बीच में। ये हम फिगर लाख और बना चुके हैं फिगर आपके बैच में। अरे पीछे बोलो कौन एक? आपका इनवेलप। इनवेलप के 3 पोर्शन है, हेडर, फुटर और फॉन्ट। तो बेटे इस प्रोग्रामर को बोलो, अगर कोई नॉनसेंस करोगे, कोई मिस्टेक करोगे, यू मस्ट नोटिफाई दैट मिस्टेक टू मी। तो बंदा जो काम करेगा WCF को बेटा, वो क्या अप्लाई करेगा बोलो? फॉल्ट एक्सेप्शन। उससे क्या होगा भैया? अगर वो बंदा फॉल्ट एक्सेप्शन अप्लाई करेगा, जो उसकी मन की बातें पूरी नहीं हुई, आई डोंट नो रीजन क्या था, वो इनवेलप के 3rd पोर्शन में जाएगा। 3rd पोर्शन डॉट डॉट 3 डॉट 3rd पोर्शन में जाएगा। यहाँ पे रीजन आएगा। रीजन क्या है? और ये बंदा भी, वो बंदा रीजन कहां से पढ़ेगा बोलो? उस इनवेलप के 3rd पोर्शन से पढ़ेगा। गेट अ पॉइंट? तो
तो इसका क्या हुआ इंटरव्यू में अनिश का? हो गया बेटे? बेटा समझ आ गया? तो सेकेंड, चलो आपने उसको बता दिया जैसे WCF बनाएंगे फंक्शन और फॉल्ट एक्सेप्शन लगाएंगे। सेकेंड, अगर आपको बेटे इस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो भूल के मत जाओ। बिना सिलाइजेशन का फॉल्ट एक्सेप्शन नहीं हो सकता। कॉपी दो, कॉपी तो करें, कॉपी दो, जल्दी कॉपी दो। मैंने इसकी अंकल कॉपी पे एक कमेंट कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिलाइज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन। व्हाट इज सिलाइजेशन? टू मेंटेन द स्टेट। जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आई थी उस मैसेज को आप सिलाइज करो। कहां पे? बोलो, इनवैलिड के। आप देखो किसी गाड़ी एक्सीडेंट, भगवान न करे, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होती है, आपको क्लेम तब मिलेगा जब तक उसका कोई प्रूफ दोगे तो नहीं मिलेगा आपको पैसे। यू हैव टू मेंटेन द स्टेट ऑफ दैट एक्सीडेंट। तो व्हाट इज सिलाइजेशन? अगर बेटे दो बात, तो एक तो दो देखिए कैसे गढ़े हैं नालायक लोग। उठो गौरव वहां से लास्ट, आप दोनों जा रहे हो इंटरव्यू टेक्नोलॉजी को, सैटरडे को। उठो वहां से, उठो। व्हाट इज सिलाइजेशन? फैन ऑफ करना, फैन ऑफ, मनीष फैन ऑफ करना। Maintaining the state. Sir, to convert an object into stream of byte for remoting purpose or. Beta, why do we go for serialization? Because we want to transfer message. मुझे ट्रांसफर नहीं करना है ट्रांसफर। मैं सोचता हूँ मैं अपनी क्लास को सिलाइजेबल कर दूँ। क्यों? सुना है जावा और C# में हर क्लास नॉन सिलाइजेबल है। मैं दुखी हो चुका हूँ। आई एम वेरी अपसेट। क्यों सबकी क्लास सिलाइजेबल नहीं? क्यों? आप बताओ ना क्यों? मुझे नहीं यूज करना है C# की क्लास, जावा की क्लास। क्या आपकी क्लास बाय डिफॉल्ट नॉन सिलाइजेबल है? चलो बना देंगे, कुछ चिंता मत करो। बताओ तुमको रिक्वायरमेंट किस बात की? पूरा बात है। Why do we go for serialization? Because they want to retrieve the data in future. Superb answer. क्या बात है बेटे? Again, I want the simplified answer. She was in Infosys. I want single answer. सर मैं आपसे परेशान हो चुका हूँ। क्या हो गया? सर आपको कुछ याद तो आता नहीं है यार, क्या हो गया? क्यों? सर एक बनी थी ऑब्जेक्ट, बनी थी क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, बिल्कुल हुआ, आउटपुट आ गया फंक्शन से संदीप करण, ऑब्जेक्ट में आ गया। कि नालायक आई, मेरा लैपटॉप साला बंद कर दिया। हमने इतने मुश्किल से एक फंक्शन कॉल करा था और खोज खोज के उस आउटपुट को हमने एक ऑब्जेक्ट में रखा था, और आपने समझिए क्या कर दिया? आपने मुझसे बिना पूछे लैपटॉप बंद कर दिया। क्या हो सर आप इतने गुस्से में क्यों? ऐसा मेरा आपने सारा चीज खराब कर दिया यार। दोबारा बनाना सर, दोबारा कैसे बना लूं? जब बंद करा तो गार्बेज कलेक्शन कॉल हुई, उस बदतमीज ने मेरे ऑब्जेक्ट को डिस्पोज कर दिया। आज बेटे हम ऑब्जेक्ट को मारना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले अंकल मैंने एक लिंक, जो आपको लिंक भी डाला फेसबुक पे, मैं लिंक 2 दिन से खोज रहा था। देखो जीवन सर ने 5 दिन पहले लिंक दे दी थी।
और साला उस दिन पता नहीं क्या हुआ लैपटॉप का, वो रिस्टोर सेशन जो होता है वो भी नहीं था। अब मेरी हैबिट है ऐड टू फेवरेट्स की, चलो वो भी नहीं करा, रिस्टोर सेशन भी नहीं करा। अब उनको दोबारा फोन करूँ से लिंक दे दो मेरे को, क्योंकि मैंने थोड़ा बातों पहले बात करा था, कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, आजकल क्या चल रहा है आपका, कौन सा कोई नया कोई काम है तो बताओ मेरे लिए। और बातों में प्यार थोड़ा सा वो लिंक दे दो ना, तो भूल गया मैं। तो नोट नहीं कर समझे, सब नोट करना भूल गया। रुक मैं खोजता हूँ। बेटे किसी चीज को हमें बार बार यूज करना है, क्या मैं हर बार बनाऊं सारे ऑब्जेक्ट? एक बार बना के ऑब्जेक्ट उसको मैं हार्ड डिस्क में बंद रख दूंगा और दोबारा अपना नया बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, जो हमने बेटे ऑब्जेक्ट को हार्ड डिस्क में सेव करी थी उसको रिटेन कर दूंगा। सब बताओ व्यू स्टेट क्या है? एक यूजर एक पेज के ऊपर संदीप करण लिखता, बला बला लिखता, उसी पेज को दोबारा रिक्वेस्ट करता है, फिर से नया बनता है ऑब्जेक्ट। बताओ व्यू स्टेट क्या है? स्लाइडेशन नहीं करता। तो थर्ड सुनोगे, मैं चाहता हूं हर चीज को डाल दूं हाइबरनेट के ऊपर, और जैसे ट्रेनिंग टाइम शुरू हो तेरी क्लास है डिजाइन पैटर्न की ना, निकलेगा आजा। एक्सेप्शन बढ़ा रहे हैं, करना है क्या? देखो सिर्फ एक्सेप्शंस, मतलब यही झंझाड़ है, ही इज ए मैन। इन्हीं को 2 लाख की जॉब लगी है महीने की। बेटे यू हैव टू फाइंड आउट। अब देखो तो if you wanna go for interview of WCF and someone asks you how to implement exception handling, तो मैं चलो फैकल्टी होता है गधे, तो मैं चलो प्रोग्राम को आधे घंटे बना के भेज देता है वहाँ, तो मेरे नाम से आया, तो मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, सर मेरा हाथ पकड़ लिया वहाँ पे, पूछा तो यहाँ पे ये चीज को यूज किया, अब बोल नहीं पा रहा। तो बेटे अब जब मैंने प्रोग्राम लिखोगे अब एक्सेप्शंस का, वहाँ डार्लिंग आपको यूज करना पड़ेगा डेटा कॉन्ट्रैक्ट, और डेटा कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक्सलाइजेशन प्रोसेस, एक्सलाइजेशन टेक्निक। और बेबी यू कैनॉट इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग विदाउट डेटा कॉन्ट्रैक्ट, और डेटा कॉन्ट्रैक्ट इज डिफॉल्ट एक्सलाइजेशन इन WCF. It means if you wanna go for writing a WCF exceptions, you have to use the operation contract, you have to use plus what? Data contract. So data contract was sliding information to envelop and push over protocols. So what is serialization? Take an example. There are several things comes into picture. I can maintain letter. Miss मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। आप देखो यहाँ पे एक क्लास teaching has a layman type, there is a class is having a one variable called suppose index. It's a very instance of member variable, you know well. You can invoke either functions, not by static functions, but member functions. तो हमने public void assign किया। बेटे assign के अंदर हमने 30 लाइन के प्रोग्राम लिखे हैं, बड़े मुश्किल से, मशक्कत से। वो टेबल जी, वो टेबल सारा ज्वाइनिंग टेबल, ड्रामा टेबल, हमने करके 5-6 टेबल को ज्वाइन करके एक डाटा लाया, x is equal to, इसको स्ट्रिंग करो, x is equal to अनुराग सिंह। ये हमें अनुराग सिंह जो मिला 5-6 टेबल को ज्वाइन करके मिला। There is effort behind this picture, am I right? Is it very effort? क्या क्वेश्चन और डिजिटलाइजेशन? मैं चलो कहाँ से शुरू करूँ यार? मैं शुरू कहाँ से करूँ? इस क्लास को बंद करो, कर दिया। बेटे इस क्लास को पहले बनाओ पॉइंटर, क्या बना क्लास का? पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर, उसकी मेमोरी लोकेट करो। A1 बन गई पॉइंटर, न्यू वर्ड हो गया। अब A1 तो मानी हो गई पॉइंटर, पॉइंटर से फंक्शन कॉल करो। क्यों? पॉइंटर और फंक्शन एक ही लोकेशन में है, ठीक है। A1 डॉट
साइन फंक्शन कॉल करी, फंक्शन ले लिया, टास्क सीपीयू लिया, टाइम प्रोसेसर लिया, बना लिया, मिली सेकेंड लिया और डेटाबेस के टेबल पे ड्रामा के ज्वाइनिंग करके उसके सामने मेरे को अनुराग सिंह दे दिया, एक्स के अंदर दे दिया जी, और मैं यहाँ लगा दिया इंट रिटर्न, ले लिया, रिटर्न करा दिया और रिटर्न किस में कराया, एक्स में, रिटर्न एक्स हो गया। अब ये मेरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेटे क्या आ गया, बोलो एक्स आ गया, मानते हो? अरे बोलो यार, और फंक्शन के द्वारा एक्स में क्या आ गया, बोलो अनुराग आ गया। ये भी कहाँ चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्टैक चल रही है, एक हीप चल रही है, हीप स्टैक के पास हीप का बोलो क्या है, रेफरेंस, और एक्स में क्या चल रहा है, बोलो अनुराग सिंह चल रहा है। अरे बोलो सर, एप्लीकेशन खुली भी और सुनना बेटा सेकंड पॉइंट, सर मैं एक और बनाता हूं ऑब्जेक्ट ए स्पेस ए न्यू ए, इससे बेटे क्या हुआ, उस लोकेशन के 2 पॉइंटर बने। अरे बोलो यार, सॉरी एक और लोकेशन बनी, सॉरी गलत बोल गया, सॉरी, एक और लोकेशन बनी, उसके और पॉइंटर बने। अरे बोलो यार, एक और लोकेशन बनी, उसके पॉइंटर बनी, चलो एक और लोकेशन बनी हीप के अंदर। अरे बोलो यार, और एक और बोल क्या बना, एक और क्या बना स्टैक में, पॉइंटर A1 पॉइंटर A2 पॉइंटर, ठीक है। उस एक्स में बनी भी अनुराग सिंह। जब मेरी बनी ऑब्जेक्ट वहां भी क्या है, बोलो एक्स आया। अरे बोल यार करे, बस अगर फंक्शन को कॉल नहीं, एक्स को हमने फंक्शन कॉल नहीं करी A2 से, हमने फंक्शन कॉल नहीं करी बोल किससे, A2 से। देख ये हमने ये सीखा था, हमने बहुत लोगों से सीखा, ये मैंने सीखा, महान बंदा तुम्हारा न्यूक्लियस का टॉप लेवल बंदा पुलकित अग्रवाल, लाजवाब बंदा, उससे बदलाया था सामने। अगर आप मेरे को मौका दोगे हम ये बताएंगे व्हाट इज सिविलाइजेशन। 8 साल से न्यूक्लियस में था, 8 years कंप्लीट। नाउ सॉरी पूरी अग्रवाल A2 ऑब्जेक्ट एक नया लोकेशन को पॉइंट कर रही है बेटा, दोनों लोकेशन में क्या बोल एक्स है, अरे बंदर बोल है। आपको पता है एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, राइट। दूसरा ने क्या पढ़ रहा हमें नहीं पता, हमें कुछ और आता है। हमें पता है एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को क्या कर सकता है, बोल असाइन कर सकते हैं, और दोनों पॉइंटर डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मानता हूं ये पॉइंट इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, पर दोनों के पास वेरिएबल क्या बोलो सेम। तो मैं क्या लिखा, A1 इज इक्वल टू बोलो कौन, ठीक है, सॉरी गलत कर दिया, सॉरी A2 क्या कर दिया बोलो, यहां लिखो ना A2। अगर बेटा ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो बदतमीज A2 से फंक्शन कॉल करना पड़ता। अरे बोलो यार, और तब A2 में क्या था, अनुराग सिंह आता। अरे बोलो यार, तू कहाँ जा रहा है, यार एक काम करना, मेरे लिए ले आना, और मेरा टाइम बच गया, सर मुझे फंक्शन कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हो गया। बट आगे तुमने क्या देखा, ये रेफरेंसिंग भी है, ये रेफरेंसिंग हो रही है, चाहे बीट वाइज हो, चाहे मेमोरी वाइज हो, या बीट वाइज ऑपरेटर हो, ये जैसे क्लोनिंग हो, जो कुछ भी हो, ये बेटा तब हो रही है जब 2 हीप चल रहे हैं, सॉरी एक हीप में 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं और एक स्टैक में 2 पॉइंटर चल रहे हैं। अब बेटा बताओ, इस नालायक ने, सर अपने आप को बदतमीज नालायक है, इस बदतमीज ने अपने A1 के ऊपर गार्बेज करेक्शन लगाया, साले का लोकेशन खत्म हो गया। अब बोल यार लोकेशन खत्म हो गया, मानते हो? अब बेटे अब वो भी मान लो चेंजेस होते, मतलब मेरे को बेसिकली A1 से मिल रहा था, हमारा A1 इज नो मोर, A1 इज नो मोर। मैंने कहा सर एक काम करो, आप A1 को स्लाइस करके रखो, क्या बोलो, A1 को स्लाइस करके रखो, और जब मन करेगा हम A1 में A1 से ले लेंगे। मीन्स बेटा, the purpose of using a serialization, I don't want to call per object as a garbage collection. समझ गए? तो भाई इस क्लास को बेटे क्या बनाना बोलो, क्या बनाना बोलो,
और जिस वेरिएबल के वैल्यू को हमें चाहिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, इस वेरिएबल की वैल्यू को चाहिए मल्टीपल, मतलब हमने गाड़ी की लाइसेंस रख ली अपने साथ और बेटे कहीं भी जाएंगे मेरे वैलेट में और भी क्या रहेगा बोलो लाइसेंस। उसको शब्द कहीं ये दिल्ली है बॉस, पता है कमाने वाले हर स्टेप पे बैठे हैं और कब आपकी बारी आएगा नो बडी नो रन टाइम वॉलीबॉल हर जगह छूल रहे हैं साले, हर जगह छूल रहे हैं, ऐसा हमारे से गलूस कमी नहीं। सर अगर मैं इसको सीरियलाइज कर लूं और फिर एबल पे अगर अब डाली देखना, मैंने देख ले ये लड़की आ गई, नजर निकाली का ए स्पेस A3 सदा पढ़ा रहे थे जान में WCF एक्सेप्शंस सर मेरे को कहाँ फंसा दिया कहते हैं। तो बेटा मेरे पास सिनेरियोज हैं, हम मास्टर नेम सिनेरियोज रखते हैं कि तू कहाँ फंस सकता है। कि बेटे एक्सेप्शंस का मतलब तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, साले बोलना क्या चल रहा है तेरे मन में, तो तू अपने मन की बातें बोलो, कहाँ लिख रहा है बोलो इन्वेलप में लिख रहा है। और इस एंड टेबल क्या होगा बोलो डी serialize होगा। Sir, the reason I won't be joining for your batch for next 2 days because I'm going somewhere. Have a nice time. Blah blah blah. Sorry for insult. अब मैं मैसेज कर दिया मोबाइल पर, अपने मन की बातें कर दी। अब देख बेटा उससे क्या है, आई कैन रेफर द मैसेज एनी टाइम फर्स्ट से टू मी नाउ A स्पेस A3 न्यू A कलर, ठीक है बेटे। अब क्या बोलोगे, एक नया लोकेशन बन गया, उसके ऊपर पॉइंटर बन गई। अब तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, डाल दिया लिंक सर, डाल दिया, जिंदगी बना देगा वो गार्डन स्पेशल एल्गोस पढ़ना, इस तरह हमने आपको समेट लिया। पर दिक्कत क्या था बेटे कि दो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इस गधे पे डिपेंडेंट है, या इसको फंक्शन कॉल करना पड़ता। अरे बोल यार इसको फंक्शन कॉल करना, अरे बोल यार अगर बेटे ये ऑपरेटर सपोर्ट नहीं होता, सोचो फिर क्या होता जावा C#। सोचो कैसी उप्स होती, कैसा बेटा उप्स होता। तो 5 कप चाय नहीं, 5 कप चाय एक साथ नहीं बनते, 5 कप चाय 5 बार बनते। एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट को क्या करते बोलो असाइन करते। पहला वाला है एग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन मतलब आधे रिलेशनशिप, यही सारा पढ़ने वाले करूँ सारे पढ़ने पाएंगे चक्कर नमूने से पढ़ने आया सभी एक गधों से दिमाग क्या पढ़ा रहे हैं उसको। फिर 3 ऑब्जेक्ट हीप में चल रही है मेरे बेटे, एक ने अपना हाथ समेट लिया, हम तो भैया काम ले रहे हैं। मतलब 2 ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे डिपेंडेंट है बोलो, पहले वाले सर ने क्या बोल दिया, धीरे से UML बोल दिया, 98 का बंदा है, इसने क्या बोल दिया, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, डिपेंडेंसीज। अदरवाइज बेटा दोनों ऑब्जेक्ट को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। हम सुबह देखते हैं अपने माँ को डेली सिलाइज करते हैं, डेली देखते हैं, अभी चली गई बिहार, डेली देखते हैं इतने लोग खाएंगे, एक सब कुछ एक जगह क्या करा बोलो इकट्ठा करा, ले सकता सिलाइज करके और बना के रख दिया घर में। हम जा रहे हैं बाथरूम, हम कहीं और जा रहे हैं, तुमको खाना है तो वहां से खा लो। अदरवाइज बेटे तीनों ऑब्जेक्ट को फंक्शन कॉल करना पड़ता है। उससे बेटे क्या होता है सुनना, सारे 3 बार जानवर सीपीयू चलता है, 3 बार बदतमीज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अभी सिंपल क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, पॉइंटर ने अपना रेफरेंस उसको पास कर दिया। अरे बोलो यार, ठीक है सर। तो इसका कमाल है, पर डार्लिंग इसका कमाल तब रहेगा ना जब बदतमीज तीनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में चल रहे। एक बोलता है मैं तो अब चलूंगा ही नहीं, तो आप मेरे को अपना दे दो, आप सलाइज करके रख दो हार्ड डिस्क में, उसको दोबारा फिर यूज कर लेंगे। तो बेटे एक बनाएंगे बफर, एक बनाएंगे हार्ड डिस्क,
अब हार्ड डिस्क में इस ऑब्जेक्ट क्या करने, इस ऑब्जेक्ट को बोलो सीरियलाइज करने। बेटे सीरियलाइज का मतलब ये होता है, मतलब हर चीज सीरियलाइज होना चाहिए। सीरियलाइज का सिंप्लीफाइड इंग्लिश सुन ले। ये मैंने SC भल्ला से सीखा था, CSL में, सेंटर सेक्रेटरी लाइब्रेरी, शास्त्री नगर, शास्त्री भवन में। तो बंदा मेरे को बड़ा पंजाबी था, 50 लाइफ अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब तो मेरी लाइफ में कुछ है। उसने बताया था कि क्या सिलाई बताया, वर्ड में सारे तू लिख, क्या लिखूँ, सदीकरण लिख 62 ड्रामा लिख, तो अपना एज लिख 75 लिख दिया मैंने, सेव कर दिया। तो नहीं फॉन्ट चेंज करो, कर दिया, कर सही इटैलिक्स कर दिया, अंडरलाइन कर सदीकरण सेव एज कर दिया। साले का जो सुवाऊंगा जानवर, हमें सेम इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सेम होना चाहिए टू मेंटेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये काम तुम नोटपैड से नहीं कर सकता मेरा बेटा। इसलिए अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करोगे, ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन हो। जब मेरी माँ आती है ना कल, तो मेरी वाइफ और मेरी भाभी के मुंह सूख जाते हैं, दोनों का चेहरा थोड़ा देखने वाला होता है। और दिल्ली पॉलिटिक्स चलती है, कंस्पायरेसी होती है, मीटिंग होती है दोनों। हम दोनों भाई बड़े मस्त हैं, हम दोनों में इतनी पड़ती है मत पूछो। वो आती है, घर की खोजेगी, फ्रिज खोल देगी, इतना पुराना बेसारे बेड रखा हुआ है, अब तक हो गया शुरू। अब मेरे सर में छुट्टी मारेगी डेली। साले करते क्या है ये, साले फ्रिज में पुराना दिन का सामान रख देंगे, साला खोलो सामान कम पुराना से ज्यादा मिलता है। ये सब सेव हो रहा है, कोई बात नहीं, सुनो हर घर की कहानी है। जब कहीं तो राहत मिलता, व्हाट अ लाइफ यार। तो बेटी अंकल जितना सिलाइज करेंगे ना, उतना मेमोरी का कंजप्शन बढ़ेगा। यही प्रॉब्लम है। तो हम इंपॉर्टेंट चीज को सिलाइज करें, उसके लिए क्या कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, सरल वेरिएबल के पहले तरीका लगा दिया, बोलो सिलाई करें। मेरे पास 16 पैंट है, 4 टी-शर्ट है, 2 जूते हैं, ना जाना जर्नी में भाई ने के बाद 2 पैंट ले, 2 टी-शर्ट ले, 1 जूता ले, चल जूता। तो ब्रीफकेस में सारा सामान नहीं गया बेटे, जो चाह वो गया। तो मेरे पे है कि हम किसको सिलाइज करें और किसको सिलाइज ना करें। तो क्लास के पाली में सिलाइजर लगाना पड़ेगा बेटा, और जिसको तू रखना चाहती है फॉर लाइटर यूज, उसको तुम क्या करोगे, सिलाइज। कैसा तो सिलाइजेशन हम तब नहीं करेंगे बॉस जब मेरे तीनों ऑब्जेक्ट क्या है। बोलो, आप इंश्योर कर दो कि आप डिस्पोज पैटर्न कॉल नहीं करते। आप बोलो, आप मेरे साथ थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं जा रहे हो तो मैं वो सामान लेके चले जाओ। अगर तीनों ऑब्जेक्ट अगर बेटे मेमोरी में चल रहा है, और सर तो गारंटी ले कि सिलेंडर कॉल नहीं होगा, लाइट नहीं जाएगी, सिस्टम बंद नहीं होगा, हम किस बात का सिलेक्शन करें। और सुन लो बेटे, बैटरी का पावर क्या बोलते हैं, बैकअप ऑफ द बैटरी, बैटरी का इन्वर्टर बेटे बेस्ट एग्जाम्पल है कि तुम एक पावर को प्रिजर्व कर रहे हो प्लेटरी। तो हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगा अमित अग्रवाल का, उसने बोला कि अब कैरेक्टर का फॉन्ट, साला फॉन्ट का साइज तक सिलाइज है। इससे बेटा तो जाके वर्ड खोल, मौलिक संदीप करण, संदीप 7 बाइट, स्पेस 8 और 5 करण 13 बाइट्स। बेटे देखना डेटा तेरा MB में जाएगा, वर्ड में डायरेक्ट वही तो तुम देखा नोट पैड पे तेरा जाएगा 7 + 1 + 5 13 बाइट जाएगा। क्यों? वर्ड सपोर्ट करता है सिलाइजेशन को। डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट अगर बेटे बिना सिलाइजेशन का है तो डॉक्यूमेंट नहीं। एमएफसी क्योंकि MS ऑफिस से बनाया है, MFC से बना है। जैसे क्लास को C डॉक्यूमेंट क्लास इन MFC, तो हम वहाँ पे अपनी क्लास के कोई हेड करते थे C डॉक्यूमेंट क्लास। यहाँ हम क्या लगाते हैं बोलो, तो बेटा बैकग्राउंड में वही क्लास चलती है, किसी डॉक्यूमेंट देखा गया। डॉक्यूमेंट अगर बेटे सिलाइज नहीं है तो आपको दिख रहा है संदीकरण फॉन्ट 8, सर मेरे सेकंड में दिख रहा है 5, क्या हो गया यार, पूरे रिज्यूमे खराब हो गया। इसलिए प्लीज
send a resume, not in notepad, in what doc, please. अब वो स्लाइस है, उसके बाद आप सही बोल रहे थे बेटे कि बाइनरी फॉर्मेट में है कि एक्सएमएल फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, तो बात कीजिए। क्या मुझे मन एक आदमी मेमोरी खो दी, उसमें आप पागल को कर दी। इज ए मैन विदाउट ब्रेन। वो पढ़ता है और दिमाग में रखता है और कल जाके अपना इंटरव्यू देता है। और इंटरव्यू किसको देता है बेटे? जो उसको जानता है, मतलब यूज करने वाला और एक्सेस बनाने वाला और एक्सेस करने वाला सेम लैंग्वेज में होना चाहिए। उसी को ब्रेक किसने किया? WC वेब सर्विस में, कि मैं स्लाइस करूंगा किस फॉर्मेट में, एक्सएमएल में। साला कोई भी एक्सेस कर सकता है। दैट्स कॉल्ड हेटेरोजेनियस, दैट्स कॉल्ड हेटेरोजेनियस। हमने स्लाइस तो कर दी, राम जाता है नहीं, राम गोस, नाम आ गया, राम हैज कम। हमने स्लाइस किया एक्सएमएल फॉर्मेट में। तो बेटे एक होता है डॉटनेट का स्लाइजेशन, एक होता है बेटे वेब सर्विस का स्लाइजेशन। कोई आपसे अगर पूछे डॉटनेट का स्लाइजेशन क्या है, स्लाइजेशन इन डॉटनेट, तो बाइनरी फॉर्मेट बोलना। WCF का पूछे तो कहना बोलो कौन? एक्सएमएल फॉर्मेट बाय डेटा कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बाप किया। So what is the difference between installation in .NET and installation in WCF? If WCF supports serialization for heterogeneous SOA based, if C# supports serialization, then other end I have to have a CLR on that. C# अगर बेटे serialize करेगा, उसको deserialize करने के लिए बेटे उस एंड पे आपके पास C# होना मस्ट है। क्यों? क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट ना, ये बंदर तुम एक नए क्लास, तुम उसी क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट। मैंने वहां बना दिया फिगर, उस क्यू के अंदर 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक बन चुका है, वो सिलाइज हो चुका है, तो 2 कौन यूज करेगा? सेम लैंग्वेज का बंदा यूज करेगा ना। उसको किसने ब्रेक किया? WCF वेब सर्विस ने। ऐसा है हम सिलाइज करेंगे और कोई भी यूज कर लेगा। क्यों? हम सिलाइज किस में करेंगे? हम सिलाइज करेंगे इनवेलप में। और इनवेलप क्या समझता है बोलो? XML, इनवेलप बेस्ड प्रोग्राम्स। लोग हर लैंग्वेज में है, सी में भी है, जावा में भी, हर लैंग्वेज में। सर इस लिंक को पढ़ लीजिए। प्लीज पढ़। अरे यार, यू विल लव दिस, यू विल लव दिस। आप यहां से लेकर सब पूरा पढ़ सकते हैं, आपको टाइम हो। किसी के मजाल नहीं कि आपसे बात करे सिलेक्शन की। और ये दिखा रहा है आज के जमाने का सिलेक्शन किस में हो रहा है बोलो? सूट में हो रहा है। और ये ऑलरेडी मोबाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए मेरे पास, J2ME जावा। एक बंगाली बंदा, एक उर्दू बंदा, एक हिंदी का बंदा भी आज मोबाइल यूज करता है और मन की बात में सिलाइज करता है और उस एंड उसको रिसीव करते हैं। और पहले क्या था? तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस तुमने बताओ? .NET में सिलाइजेशन के लिए कौन सा इंटरफेस यूज किया? ओ माय गॉड, साले भूल जाऊंगा, उसका नाम नहीं भूल सकता। आई फॉर्मेट है। इसी बेटे इंटरफेस के पास 2 खतरनाक फंक्शन है, serialize और deserialize। और ये कहां पे serialize कर रहा है बोलो? किसी फाइल में, प्रोग्राम तक लिखा होगा। ये deserialize का प्रोग्राम है। ऊपर क्या बोलो? बस Ctrl+C करो, Ctrl+V करो। देखो एक क्लास ना, एक क्लास का नाम बोलो माई ऑब्जेक्ट है और मेरे पास N1 है, N2 है और नल है। मुझे N1 की 0 चाहिए और N2 की 0 चाहिए ऑब्जेक्ट के मरने के बाद। बेटे जब बनी क्लास की, और देख बनी क्लास की ऑब्जेक्ट, देख क्या बनी क्लास की, क्या बनी ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर है ही नहीं साला मेरे पास, स्लाइस कर दिया 1 और 24 और टू समथिंग कर दिया, और हार्ड डिस्क के बेटे किसी फाइल में क्या कर दिया बोलो, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया बोलो, सीरियलाइज कर दिया। उस वक्त डेटा क्या था बेटे 1 24 और समथिंग था, और 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ ये प्रोग्राम चलाओ, ये वाला प्रोग्राम, फिर से एक नया बनाओ ऑब्जेक्ट और टाइप कास्टिंग करके उसमें डाल दो और वापस ले लो N1 N2 और ये हुआ डॉटेड का बेटा सिलाइजेशन। प्लीज ये डॉटेड की सिलाइजेशन चल रही है मेरे बेटे, डॉटेड की सिलाइजेशन। इस लिंक के बिना हाउ डेट टू कम इनसाइड माय रूम, तुम इस रूम में आए कैसे मेरे पास? तुमको अगर डबल से पढ़ना था तो कंट्रोल सी, सही है नहीं, ये बॉस पाना, ये वाला बॉस और कुछ मत पाना, ये वाला। और कभी डाउट हो इस बंदे को याद कर लो, उनके बेटे का फोटो, कुछ भी डाउट किसी टॉपिक के ऊपर जो बहस करना है, डिजाइन पैटर्न सॉफ्टवेयर इन ज़्यादा पूछिए। सर जी जो देते हैं वो पढ़ो, उससे आपको भला होगा। ओके, और उसके बाद आप नीचे का प्रोग्राम देख लो, ये आपकी आ गई, सब देखो। व्हाट इज सिलेक्टिव सिलाइजेशन? हमें ये पैंट निकाल दे यार, भाई बनियान मत दे। तो बेटा अगर ये करोगे ना तो लोड बैलेंसिंग अचीव करोगे, तुम्हारी हीप की साइज बढ़ेगी नहीं फालतू की, है राइट? अंकल आदमी अगर 2 आदमी जाए साथ में ना, एक जेंट्स का ब्रीफकेस देखो, एक लेडीज का ब्रीफकेस देखो, मजा आएगा। चलो उठना ही नहीं है वो। अब मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ टेंशन होना शुरू हो गया। चलो पूरा मेरा खुल चुका है मेरे घर का, पेट पे जगह ही नहीं रखने का पैर, लेटू कहाँ? और सर 2 दिन से पड़ा मुझे पता है। चार निकालती है, सो गई, फिर उठी, फिर 2 और निकाली, सर शाम को 36 हो जाएगा, और सुबह पता है सिनोस। ये है कि भाई कहानी है। असल हम लोग क्या जल्दी देखेंगे, सोचेंगे, चाय पिएंगे, तो रात उसी में हो गए, क्या नहीं पूरे। ये सिलेक्टिव सिलाइजेशन नहीं है। इसलिए फोन करेंगे अपनी माँ को, ये ले जाओ मम्मी, तुमको बम लगा दो वहीं पे गाओ। चलो मुझसे पूछो मम्मी को तुमने फोन क्यों क्या करे? रास्ते में आप अमरूद हो गया ना, तो चाकू से काट के देगी, और मसाला भी डाल के देगी। और उसको मैनेज कौन करेगा? उसका सिरार कौन है? मैं हूँ ना। वो सिंपल फंक्शन कॉल के छोड़ देके खा लिया, मैनेज कौन करेगा उसको? अब चाकू से काट के मसाला डाल के ये वाला प्लेट में डाल के देगी। ये वाला जबरदस्त। इसने क्या करा है, अपनी क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करा है बोलो? आई सिलाइजेबल, इस वाले सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, इसको देखना। और फिर एक अपनी क्लास बनाई है, ये क्या बोलते हो? इस लाइन को क्या बोलोगे? जो क्या पढ़ने में बहुत तेज है, इसका बेटा भी अच्छा होगा जो पढ़ने में, तो ऐसा बोलते हैं। तो बेस क्लास अगर बेस क्लास अगर बेटा बोलो क्या है, सिलाइजेबल है, उस अपने आपको इनहेरिट कर ले, सभी सिलाइजेबल होगा। मेरे पास ब्रेन है तेरे पास, मेरे पापा पास है में ब्रेन, तो करे वर्जनिंग। सर आपका वर्ड करता है, लास्ट मॉडिफाइड डेट लिखा होता है, लास्ट एक्सेस डेट। वर्ड जो सिलेक्शन कर रहा है वर्जनिंग के साथ करता है, और इसी पूरा पर ठीक है सर, आगे बढ़े। चलो
इसमें मैं क्या बनाऊँ? ये बना दूंगा फंक्शन, एक लगा दूंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये लगा दूंगा ट्राई थ्रू कैच, और कैच कर दूंगा कुछ अपो टाइप से है ही कैच में, फाइल न्यू वेबसाइट, और क्या बोलूँ, सॉरी 5 मिनट में हो जाएगा। फाइल न्यू वेबसाइट। तो बेटे फाइनली हुआ कि मेरा रिजेक्शन हुआ सलाइजेशन से और एक्सेप्टेंस हुआ, बोलो किससे, एक्सेप्शन से। तो चक्कर है ओवरऑल मेरी ट्रेडिंग खराब चली गई। बंदे कौन से स्किल लर्निंग है और सलाइजेशन की बात करो, हमने एक्सेप्शन की बात करो। बात ये अब यहाँ के मैं क्या करूँ बच्चे वाले को, इस इंटरफेस में से सारा निकाल लो कर। हम इंट पास करेंगे, वहां से रोल नंबर आएगा, ये नाम आएगा बच्चे का, ठीक है। किससे आएगा, बॉडी से आएगा। चले ना आएगा तो मैसेज लिख, तो मैसेज सिलाइज करना। तो बेटे एक बतलाओ, उन दिनों इसके फादर इसको लेटर लिखते थे, सर मतलब क्या होता था, पोस्टमैन, इनवेलप ड्रामा, सब कुछ का सिलाइजेशन था। तो उस एंड पे कौन पढ़ता था, ये क्यों, ये भी उड़िया जानता है बेटे। सिलाइजेशन और डिसलाइजेशन सेम लैंग्वेज में होगा, वो डॉट, वो एक लैंग्वेज की सिलाइजेशन है। और वेब सर्विस WCF के पास बेटे लैंग्वेज की सिलाइजेशन नहीं है, हट कर है। जो सपोर्ट करता है किसको, जो सपोर्ट करता है, सुनो, जो सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड को, वो कौन है, W3C है। इसकी उड़िया, मेरी हिंदी बिहारी, इसकी अपनी यूपी, ये बेटे नेटिव सिलाइजेशन हुआ। और तीनों से हट केवल कौन हुआ, स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड एक्सएमएल सिलाइजेशन सपोर्टेड बाय डेटा कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसके इसमें आकर सबको निकाल दो, बच्चे वाले काम। बुढ़ा से तो प्रोग्रामिंग क्यों करवाता है घरों, इसको हटा दो, सब नमूने को निकाल दो, और यहाँ पे वही बोरिंग काम शुरू करो। सिस्टम डॉट डेटा डॉट बोलो कौन, वही लिखूंगा बच्चे वाले काम। अब यहाँ पे आकर SQL कनेक्शन स्पेस कॉम न्यू बट कनेक्शन, बेटे आप आज पढ़ोगे सिलाइजेशन उसी लिंक से, क्या आपको जितना नॉलेज होगा बेटे। डज सिलाइजेशन सपोर्ट इनहेरिटेंस और नॉट, सब पहले कुछ से बाहर हो गए। क्या इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है सिलाइजेशन, ओ बाय गॉड। क्या इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है डेलीगेशन मॉडल, क्यों नहीं करेगा। क्या इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्यों नहीं करेगा। मेरे सारा बेस क्लास के पास कोई एक्सेप्शन आएगा, सर डायरेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे से दिमाग खराब कर रहे हैं इंटरव्यू में। जरा सोच के मैंने क्या पूछ रहा है मुझसे, यार एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट करेगा इनहेरिटेंस, क्यों नहीं करेगा। अगर मेरे बेस क्लास के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आया, डिराइव क्लास में क्यों नहीं आएगा। सर बंदर, सर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हीप के अंदर क्या बन रहा है, बोलो एक ही हीप में बन रहा है। क्या बेटा ऑलवेज बाप का अच्छी चीजों को एक्सेस करेगा, क्या अपने बाप के बुरे चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता है क्या वो। मेरी काम फंस गई।
कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि रिटर्न करना हीप को, लोकल नहीं कर रहे हैं। स्ट्रिंग एक्स में क्या डाल दिया बोलो? अगर फॉल्स हो तो एक्स में क्या क्या बोलो? बाय डिफॉल्ट नली है, एल्स क्या जाएगा बोलो? रिटर्न सॉरी एक्स में क्या डाल दिया? आईडी ऑफ 1 डॉट टू स्ट्रिंग 1 क्या सेकेंड कॉलम है, और यहाँ पे क्या कर दिया बोलो? रिटर्न व्हाट? एक्स कर दिया। अरे बोलो अब बेटा, जब भी रिटर्न करेगा ये इनवैलिड की बॉडी भी क्या देगा बोलो? एक्स का सेकंड कॉलम देगा, टेबल का सेकंड कॉलम देगा। स्टार्ट ऑन ठीक है ना? फाइनल लगा लो, फाइनल लगा लो वहाँ लिखो। बॉक्स का आ गया। बॉक्स भी ले लो।
देख रहे हैं अंकल क्या दिक्कत हो रही है. I'm not getting a custom exceptions. हमें एक यूजर फ्रेंडली मैसेज नहीं मिल रहा. हम 3 बार गलती ठीक कर रहे हैं बैठ के, खुद डिबगिंग कर रहे हैं बेटा उस शेप के साथ. चलाते हैं यार, इसको रिबिल्ड करना होता है. ठीक है, अब डेटाबेस ऑफ कर देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा. ठीक है, ये बेटा का एक लॉजिक हो गया. अब इसी बच्चे वाले काम आ जाओ, शुरू करते हैं ड्रामा. सबसे पहले इसके कॉन्फ्लिक्ट है. सबसे पहले हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शंस एंड वाई टू इम्प्लीमेंट हमने देख लिया. हमें कस्टम मैसेज नहीं मिल रहा है. अब बेटे कस्टम मैसेज लिखने के लिए हमें मन की बात स्लाइस तो करनी पड़ेगी ना, डेटा कॉन्टेक्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा. सबसे पहले बच्चे वाले काम यहाँ पे. अब आकर आप यहाँ पे लगा दो इसको. देखो आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्ट क्या बोलो वाला हो गया. मैं ये आप तभी इंटरव्यू की डिजर्व करोगे जब आप उसको एक बार पढ़ लोगे सिलाइजेशन को पूरा ठीक से पढ़ो. मतलब चलो यहाँ पे आएगा नहीं, तमाशा करेगा. ओके, यू कैन लिव फॉर अ डे. पता बेटी जब भी आप पढ़ो ना, आपको लगता है इस रास्ते को रास्ता निकल रहा है. अब हर रास्ते को ठीक करो यार, एक ही चक्कर में पागल मत करो. सेकेंड चलो लिख लिया. बिहेवियर के अंदर सर्विस डिबग टैग क्या है उसमें कम नहीं होना चाहिए. हर 2 मिनट से फीडिंग. आज सिग्नस कॉल बैक इधर भी होगा उधर भी होगा. पैरेलल प्रोसेसिंग 6 रूल है बेटा. पहले जाके कंप्यूटर फ्रेंस से इसका रूल नंबर 3 है. when exception is thrown outside the try block. when exception is thrown outside the try block, तो ट्राई और कैच होगा वेबसाइट के पास और डार्लिंग थ्रो कहाँ होगा बोलो? वेब सर्विस फेलोशिप के पास. यहाँ नहीं होगा. ये ट्राई क्यों करेगा? ट्राई तो हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं क्लास का ऑब्जेक्ट. इसको कट कर दिया. इसको कट करके वहाँ सर्विस को डाल दो. अब तो हो गए. अब तो हो गया. बेटा याद मत करो कुछ. याद नहीं, सभी की हालत खराब लोगों करेगी. अब वो ठीक करता है. वो पहले कर दो. क्या था पहले बोल. जनरल फंक्शन है.
ने जेनरिक फंक्शन। अब बेटा जेनरिक्स आ गया, अब रफीमुल्लाह फंस गए को यार, सलंजी को कहाँ बैठे तो स्लाइस करना आ गया क्लास के पहले स्लाइजेबल एट्रीब्यूट, ये डेटा कंटेंट लगा। व्हाई यू वांट टू मेक अ बेबी क्लास एज अ जेनरिक बेस क्लास? और व्हाट इज जेनरिक क्लास? Basically gives the class in गार्डिंग व्हाट इज मुझे मसाले मास्टर ना तो मैं रिजल्ट आ करें मास्टर की जगह कुछ आता है मेरे को जेनरिक क्लास क्यों? व्हाट इज जेनरिक क्लास? मुझे नहीं सीखना तो जेनरिक्स क्या है? जेनरिक्स हमें आता है ह्यूमन का अच्छा आता है। जेनरिक क्लास का बनाएगा जेनरिक क्लास में जेनरिक्स नहीं बोल रहा हूं, करे एक तो सर क्वेश्चन दो बार से बोल रहे बेटे। जेनरिक्स में बने बनाए कलेक्शंस हैं, हमारा राइट? हम पूछ रहे जेनरिक क्लास कैसे बनाओगे तुम? एंड व्हेन यू वांट टू मेक अ जेनरिक क्लास, पता है अंकल बुरा मत मानना, यही बच्चे साले जाके साले मार्केट में नाम खराब करें। साले जाएंगे WCF पढ़ के 16 इंटरव्यू देंगे, अकल तब खुलेगी। साले की जॉब लगेगी 16 इंटरव्यू देने के बाद। एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस पेज पढ़ेंगे नहीं, पेपर निकाल देना पेपर पे। बोलो जेनरिक क्लास क्या है, बोलो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, छोटे इधर आइए, इधर आओ, कर इधर आओ, मैं सही करता हूँ। फंस गया था मुल्ला फंस के। अब ले जाएंगे सिर्फ गरम रॉड करके भी लाते हैं, गरम रॉड। बेटे यही बच्चे फंसते जाके इंटरव्यू, यही बच्चे फंसते हैं, ये नहीं मानेंगे। ये हो तो गया, अब बस ऑफ है साइड पे, ट्राई लगा तो क्या लगा दो, ट्राई और क्या लगा दो, बोलो कैच, गेम इज ओवर। व्हाट इज जेनरिक क्लास? बोलो पढ़ा मेरे को 10 मिनट। व्हाट इज जेनरिक क्लास? बेटे बुरा मत मानना, सुन लो, मेरे को बुरा मान के क्या करोगे? हेलो अभी सिमर का है, ये प्रेम का है, राजीव का है, तुम चले जाओ, उसको यही बोलो। हाँ बेटा बोल, जेनरिक क्लास है। ऐसा है, एक क्लास है, हम कहा सर देख रहे हो बेटे, बुरा मत मानो, फंसोगे उस रूम में। उस रूम से मेरा बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत लंबा सफर। एक जमाना था अंकल, जीवन सर और शुक्ला सर बोर्ड ऑफ मीटिंग में बैठते थे टॉप लेवल MNCs में। मैं उनका बैग धो के उनके साथ चलता था एज ए प्यून बनकर। और एक दिन आया मेरे लाइफ में, बोले संदीप तू आज बैठेगा बोर्ड ऑफ मीटिंग में। मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। और वहां पे साइकोलॉजी रीड करी, इंटरव्यू होता कैसे और देते कैसे, बस। और ये देखा साला पढ़ के जाते हैं कुछ, पूछता है कुछ। बेटे एक क्लास है, सुन रहे, एक क्लास है, साले मैं क्लास में रखता हूँ 15 वेरिएबल, सुन रहे हैं, उसका बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट। दिमाग खराब कर दिया ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है कलेक्शन को, मतलब इस ऑब्जेक्ट में इस क्लास के 15 वेरिएबल गए। और बेटा कैसे कैसे गए सुनेगा, इंट भी गए, कलर फ्लोट भी गए, कैर भी गए, डबल भी गए। अब एक बंदा बोलता है ग्रुप बाय अप्लाई करो यार, मैं पक्ष चुका हूँ तुमसे। मैं अंकल मैं अपने आप को देख रहा हूँ चेंजेस। अब हमें पता चेंजेस क्या आ गई है, मैं घर जाता हूँ ना, आई वॉन्ट थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये नहीं था पहले मैंने उतना। और टेम्परामेंट खो देता हूँ कभी गुस्से में, मारता नहीं हूँ, डांटता नहीं हूँ, मैं खुद अपने करने बैठ जाता हूँ। सर वहाँ शूज उसने वहाँ खोल दिया, सर मेरा पेन गायब है, सर लैपटॉप गायब है, पेट उल्टा पुल्टा है, गुस्सा आता है बेतरीके। क्यों? अब उसको ठीक करो फिर बैठ के पढ़ो। तो वन लाइफ रीचेज ऑन द सर्टेन टाइम यू वांट टू गो फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, बट ये इतना गंदा ऑब्जेक्ट है
इस ऑब्जेक्ट में उस क्लास के 15 वेरिएबल्स हैं और इसमें 15 जो डिफरेंट टाइप के हैं। काश मुझे डेटा ग्रुप बाई बना दे। ग्रुप बाई क्या होता है, मजा आ गया। सर मैं चाहता हूं अपने क्लास के ऊपर ग्रुप बाई लगाओ, implementing a group by on a class so that I have got 20 objects of different behavior is called polymorphism. आपका बड़ा बेटा सेपिएंट, सेकंड बेटा कुछ और, रिलेटिव कुछ और. You have given the behavior to all the kids or not of same type, of different types. एक क्लास के अंदर 16 ऑब्जेक्ट हो गए, जो ज्यादा बोल दिया. एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट हो गए और 15 वेरिएबल्स हैं. 15 का तो पहले श्रेणी बना. श्रेणी मीन्स 5 ऑफ कैरेक्टर, 5 ऑफ इंट और 5 ऑफ क्या बोलो, फ्लोट. बट जब मदर रहती है मेरी घर में, आई लव द फैमिली बिकॉज शाम होता है, शी नोज, उसके पास कैच मेमोरी है. शाम होता है, सब कुछ मेरा ठीक होता है और सबके पास एक्सक्यूज होता है, पर मदर के पास एक्सक्यूज नहीं होता. पता नहीं क्या चीज. 6 बजा घर पहुंचे, सब कुछ सारा ऑर्गेनाइज है, वो गोभी लगी रहती है हर चीज को साफ करने में. और तरह किसी बोल तो भूल गई, तुम नहीं कर सकते, घर अपने से टिक क्या मुंह लगा लेंगे मेरे से. बहुत हीरो हो गए हो तुम, बहुत सेंटर चला रहे हो. यहाँ भाई घर बैठे 2 घंटा देखो, हो गई सर चौकसी हो गई, जब सामान ले लिया मार्केट से. चला डांटने हम आए तो उल्टा आप डांट से जा रहे हैं सामान लाने के लिए. कहाँ जा रहा है सामान लाने? थोड़े दिन हमारे घर में नहीं होता कि फायदा तो मन करता चला यार बैठे हैं जरा. हर चीज सिस्टम से अंकल बच्चे ने मेरे घर में आके देखो, आप पूरा प्रगति मैदान है, वो पूरा प्रगति मैदान नजर आएगा आपको. सर सब वेराइटीज में, सब वेराइटीज मिलेंगे. 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, सर चीजा घर मिलेगा आपको. हमारे घर में हर समय कोई ना कोई रहता है, आपने देखी होगी. वैसे आपके घर तो नॉर्मल आपका देखा है, मस्त है. अब तो कर देगा ना. क्लास का क्या बोलेगा, जर्नलिस्ट क्या है, अब सुनने आंसर. सर देयर आर सेवरल कॉज एंड सेवरल रीजन आई वांट टू गो फॉर मेकिंग a class as a journalist based class. The reason is that if a class is having 16 variables and the heap is made, the problem is there, the heap will have all the variables of different types. I want to make a heap in such a way that the object will have only the selected type of information called int, and second can have the float, and third can have the what, double. So that someone want to go for int, I can really provide this object. Someone want to go for the float, I can provide this object. So I can categorize the object of different one class. एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट. से एग्जाम्पल देखो ना, क्या चाहिए, फेमोनिक की सीरीज, ओके, लिस्ट का स्ट्रिंग लगाओ. क्या करना है, फैक्टोरियल लिस्ट का इंट लगाओ. क्या करना है, डेसिमल वैल्यू लाना है, लिस्ट के ब्रैकेट में डबल लिखो. ओ माय गॉड, एक क्लास 3 तरीके से सर्व हो रहा है मेरे डार्लिंग. ये क्या बोलो, पॉलीमॉर्फिक नेचर. अब ऐसे ही बता करो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है. मतलब बेटे वो काम कर जो तुमको सोचने के लिए मजबूर करे. बस हमारा ये मैथमेटिक्स. दिन बिना सोचे गया तो बेकार दिन गया. चाहे मैं इसको सोचने के लिए मजबूर करूं, चाहे तरुण सर को, चाहे अपने कुल्लर पे मनोज को. इस साले को मजबूर करेगा तो मुझसे पूछेगा, मुझे पता नेक्स्ट डे मुझे ही पढ़ना पड़ेगा इसी बहाने. पर दिन अगर अंकल बिना किसी काम का गया ना, तो दिन का भी मजा नहीं. अब तो कर लेगा ना बेटे. अब वहां पे क्या करेगा, ट्राई और